جو آپ کے سلسلے میں، اور ہم دعا کر رہے ہیں آپ کے لیے کہ جو خدا کی پاک مرضی ہے وہ آپ کے لیے، آپ کے گھرانے، زندگی اور فیوچر میں جو بھی اس کے الہی ارادے ہیں وہ آپ کی زندگی میں پورے ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔ آج کا جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے وہ آپ نے سنا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑھا ہے بیٹی نے، اور ہم جو ہے پچھلے چند دنوں سے، ہفتوں سے کرسچن بیہیویئر جو ہے اس کے اوپر باتیں سیکھ رہے ہیں، اور ہم غور کر رہے ہیں کہ جو خداوند کے کلام کے مطابق مسیحی زندگی کی بنیادیں ہیں وہ کیا ہیں۔ اور میں یہی آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی کلام کی تیاری ہوتی ہے تو میں ذاتی طور پہ اس کو سیکھتا، سمجھتا اور کوشش کرتا ہوں کہ زندگی میں اس میں آگے بڑھوں آپ کے ساتھ مل کر۔ آج ہم مل کے جو چیز سیکھیں گے کرسچن بیہیویئر میں، پہلے 3 بیہیویئرز ہم نے سیکھے ہیں جو ایک مسیحی زندگی میں ہونے چاہیے۔ کوشش کریں بتانے کی۔ پہلا تھا محبت، دوسرا شادمانی، جوائے، اور جو تیسرا بیہیویئر تھا وہ تھا فکر نہ کرنا، فکر کے بارے میں۔ اور مسیح نے جب کہا کہ فکر نہیں کرنا تو اس کے معنی اور مطلب جو ہے ہم نے کلام میں سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج جو ہے وہ ہم اطمینان کے بارے میں، پیس کے بارے میں چند ایک باتیں جو ہیں اس کو سیکھیں گے۔ پیس جو ہے اس کے لیے اطمینان کے بارے میں یاد رکھیں کہ اطمینان جو ہے یہ لیونگ پلیس، اطمینان صرف حالت نہیں ہے بلکہ یہ وہ حالت ہے جس میں آپ رہتے ہیں یا جس میں ایک مسیحی کو رہنا چاہیے۔ یہ رہنے کی جگہ ہے۔ جو مسیحی زندگیاں ہیں، شادمانی کو ہم نے سیکھا، شادمانی ہمارے اندر رہتی ہے اور ہم پیس میں رہتے ہیں۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے شادمانی جو ہے، میں خوشی کی بات نہیں کر رہا، میں نے اس وقت آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کی تھی، خوشی وقتی ہے، اس کا تعلق آؤٹر چیزوں سے، باہر کی چیزوں سے ہے۔ باہر کی چیزیں ملیں، حالات اچھے ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو، آپ خوش ہوتے ہیں، نہ ہوں آپ اداس ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو شادمانی ہے یہ آپ کے اندر رہتی ہے، یہ اسپرچول ہے، اس کا تعلق باہر کی چیزوں سے نہیں ہے۔ ایک شخص جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، اس کی شادمانی کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ کس حالت میں؟ اگر کوئی آ کے آپ کے منہ پہ تمانچہ بھی مار دے تو اس کی شادمانی اس کے اندر ہے، وہ اپنا منہ دوسری طرف پھیر دے گا کہ ادھر بھی مار لیجئے۔ یہ معیار ہے، یہ لیول ہے، اسپرچول لائف کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو شادمانی جو ہے اس کو ہمارے اندر رہنا چاہیے اور ہمیں پیس کے اندر رہنا چاہیے۔ اور پیس جو ہے یہ رہنے کی جگہ ہے۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ اس بہت بڑی خوبصورت جو سٹیٹمنٹ ہے ورڈ آف گاڈ کی، وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وہ کون ہے؟ پرنس آف پیس۔ مسیح کو کہا گیا ہے کہ وہ اطمینان کا شہزادہ ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ جب آپ پیس کے اندر رہتے ہیں تو اصل میں آپ مسیح کے اندر رہتے ہیں۔ جو پیس میں زندگی بسر نہیں کرتے وہ مسیح میں زندگی بسر نہیں کرتے۔ جب آپ پیس سے باہر نکل آتے ہیں تو اس کا مطلب آپ مسیح سے باہر نکل آئے ہیں۔ آپ کے اندر جو سپرچل ساری چیزیں خدا نے انسٹال کی ہیں، خدا نے رکھی ہیں، وہ جو ہے وہ ان میں ڈس آرڈر آ جاتا ہے۔ جب آپ واپس مسیح کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں ساری زندگی آپ کی کے اندر جو سپرچل لائن ہے وہ آرڈر میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں خدا کی برکت جو ہے وہ بہنا شروع کر دیتی ہے۔
सो आप जो है, हो सकता है हम रेंटेड घर में रहते हो, आप अपने घर में रहते हो खरीद के, आप 2 कमरों के घर में रहते हो, आप 40 कमरों के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस जगह रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जरूरी है कि आप मसीह के अंदर हैं। आप जहां भी हो, आपकी पोजीशन कुछ भी हो, आप कहां पे रह सके, आप मसीह के अंदर रह सके। अगर आप मसीह के अंदर नहीं तो आप चाहे बहुत बड़े महल में रहते हैं, इट मेक्स नो सेंस। अब वहां पे भी एक वक्त आएगा, आप डेस्परेट हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप जो है परेशान हो जाएंगे। इसलिए मुझे और आपको पीस को अंडरस्टैंड, बाइबल के पीस को, बाइबल में जो पीस कहा गया है जिसको, उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि जब हम पीस में हैं तो हम मसीह में हैं, और मसीह हमारी जो है वो प्लेस ऑफ सेफ्टी है, वो जगह है जहां पे आप महफूज रहते हैं, जहां पे आपका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। कौन सा तहफ़्फ़ुज़? स्पिरिचुअल तहफ़्फ़ुज़। आपकी जो रूह है उसको महफूज रखा जाता है वहां पे। जिस्म जो है इसकी कोई, इसको खुदा बरकत देता है, हमें शिफा भी देता है, हमें संभालता भी है, हमें पैसे भी देता है, हमें सारा कुछ ही देता है, घर बार नौकरियां, लेकिन ये खुदा की प्रायोरिटी नहीं है। जिस्म के बारे में क्या लिखा है? मसीह ने कहा अगर तेरी आंख ठोकर खाए तो इसको काट के निकाल के फेंक दे, काना हो जा, लूला हो जा, लंगड़ा हो जा, लेकिन बादशाही में चला जा, इससे फर्क नहीं। इसको खुदा अगर वो के ऐसे हो रहा है तो मैं काट के उसको ठीक कर, नहीं ठीक हो रही तो काट के फेंक दे, ये क्या बात हुई? मैं क्यों जो है वो हैंडीकैप हो जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मीनिंग इसमें ये है कि ये लेस इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका दर्जा पहला नहीं है। जब हम खुदा की बात करते हैं तो खुदा के लिए हमने याद रखना है कि खुदा रूह है। तो जब भी आप उसके साथ बातचीत करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, खुदा किसके साथ कम्युनिकेट करेगा अगर वो आपसे बात करना चाहता है? आपकी बॉडी के साथ, आपकी सोल के साथ नहीं, वो आपकी रूह के साथ कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि वो रूह है। और अगर वो आपके जिस्म के साथ कम्युनिकेट करे तो आपका जिस्म उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, आपका जिस्म उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता, आपका जिस्म जो स्कैटर्ड हो जाएगा, फट जाएगा, वो उसकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई शख्स खुदा को देख के जिंदा, हमारी बॉडी, हम जिस्म में इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए खुदा जब भी कम्युनिकेट करेगा आपसे, वो आपकी रूह के साथ करेगा। और खुदा की जो किताब है, किताब मुकद्दस है, उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो इस तौर से लिखे गए हैं कि आप अपनी स्पिरिट को एजुकेट कर सकें। मसीही ईमानदारों के लिए ये जरूरी है, और इसके लिए हम सबसे कम प्रैक्टिस करते हैं। हम बाकी चीजों में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमें अपनी रूह के लिए फिक्र करनी है। मसीह ने क्या कहा था? जो जिस्म को मारते हैं उनकी परवाह ना करो, वो तो जिस्म ही को मारते हैं, लेकिन जो जिस्म और रूह दोनों को मार सकता है, उसके बारे में विजिलेंट रहना है, उसके बारे में हमें सोचना, समझना, देखना और तैयार होना है, ताकि हम खुदावंद के काम और उसकी जिंदगी जो उसने दी है उसमें आगे बढ़ सके। ज़बूर नवीस 91 ज़बूर में कहता है कि खुदावंद मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, 91 साल के अंदर। तो क्या बात कर रहा है कि मैं खुदा में छिप जाऊंगा, मैं खुदा को कहूंगा वो मेरा मुहक्कम कला और मेरा बुर्ज है। तो वो क्या बात कह रहा है? वो ये कह रहा है कि मेरा खुदा जो है वो मेरी शहरे पनाह है। किस किस को पता है शहरे पनाह क्या होती है बाइबल मुकद्दस में? हाथ दिखाइए। ओके, शहरे पनाह जो है, जब खुदा ने बनी इसराइल को मुल्के कनान में लेके गया, तो मुल्के कनान में खुदा ने बनी इसराइल को सारे जो शहर हैं वो बांट दिए।
تو ان شہروں میں کچھ شہر جو ہیں جن کو کاہنوں کے شہر بھی آپ کہتے ہیں، ان میں سے کچھ شہر ایسے تھے جو خدا نے دیے تاکہ اگر کسی سے غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے، گناہ تو گناہ ہی ہے لیکن اس کی انٹینشن نہیں ہے وہ، تو وہ بھاگ کے اس کے اندر چلا جائے اور وہاں پہ وہ رہ سکتا ہے، اور اس شہر کے اندر اس غلطی کے لیے کوئی اس کو ٹچ نہیں کرے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، یہ لا تھا وہاں پہ اس کنگڈم کے اندر، اسرائیل کی کنگڈم کے اندر۔ لیکن اگر وہ اپنی شہر پناہ سے باہر نکلے تو دشمن اس کو پکڑ کے قتل کر دے تو پھر اس کا خون اس کی گردن پہ۔ لیکن اگر وہ شہر پناہ کے اندر ہے اور اسے غلطی سے قتل ہو گیا ہے تو ظاہر ہے اس کے جو لواحقین ہوں گے وہ تو غصے میں ہوں گے، تو اگر وہ شہر پناہ کے اندر آ کے اس کو قتل کرتے ہیں تو وہ قاتل ٹھہریں گے۔ انڈرسٹینڈ؟ تو جب زبور نویس یہ کہہ رہا ہے کہ میرا خدا میری پناہ ہے اور میرا گڑھ ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا خدا میری شہر پناہ ہے۔ جب کوئی چیز ایسی ہو جو نہیں ہونی چاہیے تو آپ کو سب سے پہلے خدا کے ساتھ رجوع کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے معاملہ، تاکہ آپ اس شہر پناہ میں جا سکیں اور آپ کو وہاں پہ حفاظت مل سکے، آپ وہاں پہ محفوظ رہ سکیں۔ اس طرح سے آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور روحانی طور پہ اسپرچولی آپ زندگی میں اسٹرانگلی جو ہے خدا کی طرف سے اس کی جو روحانی مراد جس کو آپ کہتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے یہاں پہ جو آج کا حوالہ ہم نے پڑھا ہے کہا ہے کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ میں تمہیں وہ اطمینان ویسے نہیں دیتا جیسے دنیا دیتی ہے۔ دنیا کیسے دیتی ہے اطمینان؟ باہر سے۔ دنیا کیسے اطمینان اور تسلی دیتی ہے؟ باہر سے۔ تو جو چیزیں باہر ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ چھینی جا سکتی ہیں، وہ واپس لی جا سکتی ہیں، وہ جو ہے وہ کھو سکتی ہیں اور وہ آپ کی زندگی سے جا سکتی ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں وہ اطمینان جو میں تمہیں دے رہا ہوں وہ نہیں ہے جو دنیا دیتی ہے، جو ٹیمپریری ہے، بلکہ میں اپنا اطمینان تمہیں دے کے جا رہا ہوں، وہ اطمینان جو تمہارے اندر ہوگا، اور چونکہ وہ تمہارے اندر ہے اس لیے وہ نظر نہیں آتا، اور جو چیز نظر نہیں آتی وہ چھپی ہوئی ہے، اور جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ چھینی نہیں جا سکتی، اور جو چیز چھینی نہیں جا سکتی وہ پرماننٹ ہے، وہ قائم رہے گی، وہ موجود رہے گی، وہ آپ کے اندر رہے گی۔ آپ اس سے غافل ہو سکتے ہیں لیکن وہ وہیں پہ ہے، اٹس ریمینز دیر۔ آپ اس سے غافل ہو گئے ہیں، رجوع کریں خدا کے ساتھ، وہ چیزیں جو ہیں وہ انلائٹن ہونی شروع ہو جائیں گی آپ کی زندگی میں۔ سو خدا یسوع مسیح نے اس بات کو کہا کہ میں اپنا اطمینان جو ہے وہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ خدا کے لوگوں کے لیے کلام میں لکھا ہے سبت کا آرام باقی ہے۔ جب ہم خداوند میں آتے ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ خدا کی پریزنس میں جاتے ہیں تو آپ کو خدا کا اطمینان آپ کی زندگی میں آنا شروع ہوتا ہے، اور آپ اس پیس کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ آج آپ صبح میری جاگ کھل گئی، صبح 4 بجے سے آن ورڈ میں یہاں آنے تک رہا خدا کے حضور میں، یو فیل پیس۔ آپ خدا کے ساتھ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں، بہت سی چیزیں خدا کا پاک روح آپ پہ ریویل کرتا ہے، کھولتا ہے، جو عام حالت میں آپ خود بھی اس پہ غور نہیں کرتے۔ سو موسیٰ کو خدا نے کہا کہ میں ان کو بنی اسرائیل کو ملک کنعان میں لے کے جا رہا ہوں تاکہ یہ وہاں پہ کیا کر سکیں؟ اطمینان کے ساتھ رہ سکیں۔ They live in peace۔ خدا کا یہ ایمانداروں کے لیے پلان ہے، منصوبہ ہے کہ وہ پیس کے ساتھ زندگی میں رہ سکیں، کیونکہ ہمارا مسیح جو ہے وہ پرنس آف پیس ہے۔ سو
खुदा के लोग होते हुए पहली बात हमने अपनी जगह को जानना है कि हमारी प्लेसिंग क्या है, और दूसरी बात हमने अपने आप को खुदा के बदन यानी कलीसिया में अपनी जगह को पहचानना है, अपनी प्लेस जो है मसीह में जाननी है, और फिर मसीह का बदन कलीसिया जिसका हम हिस्सा हैं उसमें हमारी पोजीशन क्या है उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। खुदावंद के पाक कलाम में रोमियों के खत को अगर आप पढ़ें 8 बाब की 17 आयत को, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जगह क्या है। आप और मैं खुदा के लोग जो हैं वो मसीह के हम में रास हैं। हम जो चीजें मसीह इनहेरिट करता है आसमान पे, वही चीजें आप इनहेरिट करते हैं। वो सब कुछ आप भी, आपकी मेरास है वो सब कुछ। ये मेरी और आपकी जगह है। और आपकी प्लेसिंग क्या है कि मुझे और आपको आसमानी मुकामों पे मसीह के साथ बिठा दिया गया है। ये कोई छोटी बात है। जब आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, कब नहीं करते हम, जब हम जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं। हम देख ही नहीं सकते, हमारी आंखें जो है वो देख नहीं सकती, रूहानी आंखें बंद है। लेकिन जब आप ज्यादा दुआ में जाना शुरू करेंगे, खुदावंद आपकी रूहानी आंखें खोलेगा, आप अपने आप को उस पोजीशन पे ना सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकेंगे बल्कि आप उस पोजीशन में अपने आप को देख सकते हैं दुआ में। तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर एक बरकत का नया दरिया जो है वो जारी हो जाता है कि आप मसीह के हम में रास हैं और आपको उसने मसीह के साथ आसमानी मुकामों पे बिठाया हुआ है। आप ऑलरेडी एग्जॉल्ट कर दिए गए हैं, आप ऑलरेडी ऊपर उठा दिए गए हैं, आप ऑलरेडी ऊपर बिठा दिए गए हैं। हमें खुद ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करना है, हमने नीचे रहने की कोशिश करनी है। मसीह जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर आया, जब वो जमीन पे आया उसने जिस्म इख्तियार किया तो उसने अपने आप को ऊपर किया नहीं, वो हमेशा हम्बल रहा। जो चीजें उसके सामने आई उसने उनको हम्बली डील किया। ये मेरा और आपका काम है, हमने हम्बल रहना है, हमने नीचे रहना है। लेकिन आपको खुदा ने पहले से एग्जॉल्ट कर दिया है, और जब वो वक्त आएगा तो खुदा आपको एग्जॉल्टेशन में लेके जाएगा। सो मुझे और आपको अपनी पोजीशन को, अपनी प्लेसिंग को खुदा में अंडरस्टैंड करना है। इससे आपकी जिंदगी में पीस आएगा और आप पीस में रह सकेंगे, आप मसीह में रह सकेंगे। वरना बार बार चीजें जब हमारी जिंदगी में आएंगी तो वो क्या करती हैं, थपेड़े क्या करते हैं हवा के, तूफान के, वो आपको पीस से बाहर ले जाते हैं। आपकी जिंदगी का पीस चाहता है। तो मीनिंग क्या है, आप मसीह से बार बार जो है वो बाहर निकल सकते हैं, और बाहर खतरा है, बाहर जो है वो ज्यादा अच्छी प्लेस नहीं है। चर्च में आज जो चर्च वर्क है, मैं चर्च एज अ होल बात कर रहा हूं, इसमें हमारा चर्च भी शामिल है। आज चर्च में अगर आप अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, यूरोप कहीं भी जाएं तो चर्च में आपको क्या मिलेगा, पोजीशन की बात है। पोजीशन के लिए लोग सियासत करते हैं, पोजीशन के लिए लोग झगड़ते हैं, लोग लड़ते हैं कि मुझे ये पोजीशन मिल जाए, और उसके लिए जो है वो ना इत्तेफाकी है, उसके लिए जो है बहुत से मसाइल पैदा होते हैं चर्च के अंदर। उसके पीछे क्या है, मुझे पोजीशन मिल जाए। जो भी खुदा का बंदाबंदी होगा, जिसको अपनी पोजीशन मसीह में समझ आ गई है, वो कभी भी दुनिया में किसी पोजीशन के लिए झगड़ा नहीं करेगा। जो पोजीशन के लिए झगड़ा करता है, आप याद रखें उसकी जिंदगी में भी स्पिरिचुअली जो है मैच्योरिटी नहीं आई है, वो स्पिरिचुअली उसको समझ नहीं है, उसको अपनी पोजीशन मालूम ही नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स बहन है, भाई है। लेकिन जिसको अपनी पोजीशन मसीह में अंडरस्टैंड कर लिया, जिसने मसीह जब आया उसने कुछ बनने की कोशिश नहीं की, वो पहले ही सब कुछ है। और इसलिए मसीह ने कलीसिया को यह बताया है कि तुम मेरे हम मिरास हो, तुम्हें पहले से आसमानी मुकामों पे बिठा दिया गया है ताकि जमीन पे आप हम्बल रह सके। यू डोंट सर्च फॉर एनी पोजीशन।
आप पोजीशन को ना तलाश करें, पोजीशन को ना ढूंढें। जब आप किसी रूहानी शख्स को पोजीशन देंगे तो उसका सिनेरियो ही फर्क होगा। पोजीशन की हमने तलाश नहीं करनी। जब हम पोजीशन की तलाश करेंगे तो प्रॉब्लम होंगे। कब? जब हम अपनी खुदा में पहले पोजीशन को अंडरस्टैंड नहीं करते। जो खुदा में अपनी पोजीशन को अंडरस्टैंड नहीं करते, जब वो पोजीशन लेते हैं कोई भी कलीसिया के अंदर, तो वो पोजीशन तो ले लेते हैं, ओहदा तो ले लेते हैं, टाइटल तो ले लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते। जो रूहानी शख्स होगा, जिसका ताल्लुक खुदा के साथ होगा, जब उसको आप कोई पोजीशन देंगे, पहले वो ये पूछेगा मेरी जिम्मेदारी क्या है। किसी भी पोजीशन, अब बाप की पोजीशन पे है घर में, अब माँ की पोजीशन में है घर में, आप किसी और, आप जवान हो गए, जवान बच्चे की पोजीशन में है घर में, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सिर्फ माँ होना, सिर्फ बाप होना इट्स नॉट एनफ। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। अगर नहीं तो वहां पे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। जब खुदा के लोग हैं जो समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो पोजीशन आप उनको दे वो खुश नहीं होते। वो आपसे सीरियस क्वेश्चन करेंगे मेरी जिम्मेदारी क्या है, ताकि वो उसको देख सकें कि वो उन जिम्मेदारियों को लेने के लायक और काबिल हैं कि नहीं है। इसलिए मुझे और आपको अंडरस्टैंड करनी है ये चीजें, ताकि हम आगे बढ़ सकें। खुदा ने कलीसिया के साथ वादे किए हैं। टाइम नहीं है कि हवाला जात पढ़े जाएं, लेकिन अगर आप ज़बूर 29 पढ़ें, उसकी 11वीं आयत, तो आपको पता चलेगा कि जब आप इत्मीनान में रहेंगे तो आप जोर में रहेंगे। अगर आप ज़बूर 119 की 165 आयत पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा जब आप इत्मीनान में रहेंगे आप ठोकर नहीं खाएंगे। जब आप इमसाल 3 बाब की 17 आयत पढ़ेंगे आपको पता लगेगा जब आप इत्मीनान में रहेंगे आप खुशगवार रहेंगे। आप जब यसाया 26 बाब की 3 आयत पढ़ेंगे आपको पता चलेगा जब आप इत्मीनान में पीस में जिंदगी बसर करेंगे तो आप कायम रहेंगे। और बहुत से हवाला जात इत्मीनान के बारे में आप तो दुनिया ऐसे आप सर्च करके इस मैसेज को और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर नहीं तो इतने पे इत्तेफाक करें, इसको ही अच्छी तरह समझ लें, ये भी अच्छा है। मुझे और आपको इत्मीनान में जिंदगी बसर कर, मसीह में जिंदगी बसर करनी, क्योंकि वो प्रिंस ऑफ पीस, उसने आपको ऑफर दिया, उसके दरवाजे खुले हैं, उसकी बाहें खुली हैं, बाहें खोल दी उसने इस हद तक कि उसकी बाहों में कील ठोंक दिए किसी ने, उसने परवाह नहीं की, जब तक एक एक जो उसके लिए बुलाया गया है वो उसकी गोद में आ ना जाए। उसकी बाहें आज भी खुली हैं, खून जारी है, ताजगी के साथ, डजंट मैटर, आप आइए, वेलकम है। कौन सी चीजें हैं? 5 ऐसी चीजें जिनमें आपका इत्मीनान जाता रहेगा, वो आपके इत्मीनान को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, पहली बात। और उन चीजों के लिए आपने सीखना है, समझना है, जानना है। पहले से उन चीजों को आप अपनी जिंदगी में सेटल डाउन कर लीजिए वंस फॉर ऑल, तो आप हमेशा इत्मीनान में जिंदगी बसर करेंगे। पहली बात, आपकी जिंदगी में ऐसे सवाल आएंगे जिनका कोई जवाब नहीं होगा। अगर आप हर सवाल के जवाब की तलाश में निकल खड़े होंगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आप सेटल डाउन कर लें कि आपकी जिंदगी में ऐसे सवाल आएंगे, आप बड़े हैं, आप बच्चे हैं, जिनका आपके पास कोई जवाब नहीं। आप जिससे भी मिलेंगे उसके पास भी कोई जवाब नहीं होगा, या जो जवाब मिलेगा वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। हर सवाल के जवाब की जरूरत नहीं है, इसको आपने जिंदगी में अंडरस्टैंड करना है। दूसरी चीज, आपकी जिंदगी में ऐसी हैपनिंग्स होंगी जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आप हर चीज के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो चीजें जो हैं आपको बिल्कुल हेल्प आउट नहीं कर सकती। आपकी जिंदगी में जब आप कलीसिया में चलते हैं, बच्चे मिलते हैं, बड़े मिलते हैं, हादसात होते हैं, बड़े बड़े हादसात होते हैं, वो चाहते हैं मैं उनको उनके लिए एक्सप्लेन करूं। आई हैव नो आंसर। मैं उनको कहता हूं बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं जिनकी हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई जवाब नहीं है।
ये कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो हम शायद वहां जाके शायद अंडरस्टैंड करें। सो बहुत सी ऐसी हैपनिंग होती हैं जिनके लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना है, उनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरी बात, आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो तब्दील नहीं हो सकती। आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है, आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो तब्दील नहीं हो सकती। उनके लिए अगर आप रोएंगे, अगर आप बुड़बुड़ाएंगे, अगर आप चलाएंगे, अगर आप दुआएं करेंगे, तो फिर भी वो चीजें तब्दील नहीं होंगी। अगर कोई चीज तब्दील होगी तो वो आपकी सेहत तब्दील होगी। आपको पहले ब्लड प्रेशर नहीं था, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। आपको पहले शुगर नहीं थी, शुगर हो जाएगी। अगर पहले से शुगर है तो ये नहीं आप कर सकते हैं। आपकी जिंदगी के अंदर, ईमानदार की जिंदगी के अंदर ये चीजें उसको अंडरस्टैंड करनी है। सिचुएशंस हैं जो तब्दील नहीं होंगी। उसके लिए आपको अपने आप को सेटल डाउन। चौथी चीज जो है, आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें आएंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, वो आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। अगर आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहेंगे तो आप खुद आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएंगे। आप ऐसी चीजें करेंगे जो कि क्रेजी हो। इसलिए जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, जस्ट बी क्वाइट, जस्ट बी काम, लिव इन पीस। मसीह में जिंदगी बसर करें। वो नहीं है कंट्रोल में तो नहीं है कंट्रोल में, इट्स ओके। पांचवी और आखिरी बात, ऐसी चीजें होंगी आपकी जिंदगी में जिनके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। खास तौर पे कब परेशानी होती है, जब मियाँ कुछ करे, बीवी कुछ करे, या बच्चे कुछ ऐसा कर दें जो आप नहीं समझते कि उनको करना चाहिए। आपकी जिंदगी में जब वो चीजें आती हैं जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, तो आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हर चीज की जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर नहीं लेनी। हर चीज के लिए आपने अपने आप को नहीं कोसना कि मैं इसका जिम्मेदार। खुदा यीशु मसीह से बड़ी मिसाल कोई हो सकती है? खुदा यीशु मसीह से बड़ा उस्ताद कोई हो सकता है? खुदा यीशु मसीह से बड़ा तरबियत देने वाला कोई हो सकता है? उसी के पहलू में एक शख्स जो उसके साथ रहा, 12 शागिर्दों में रहा, यहूदा इस्करियोती निकला। तो मसीह उसके लिए अपने आप को ब्लेम दे? मसीह जब जमीन पे आया तो वो क्या कहलाया? इब्ने दाऊद। वो क्या कहलाया? इब्ने। और दाऊद जो है उसकी मिसालें दी जाती हैं। दाऊद की जिंदगी को हम स्टडी भी कर रहे हैं काहे गाहे। लेकिन दाऊद की जिंदगी में उसकी औलाद जो है वो कैसी है? पहली औलाद जो है उसकी वो जानी निकली, अमनून। उसने अपनी ही बहन से ज़िना किया। दूसरी उसकी औलाद अबीसलूम, वो कातिल निकला। उसने अपने भाई अमनून को कत्ल कर दिया। वो जो है उस अमनून ने अपने बाप की बादशाही को छीन लिया उससे, और दाऊद को बियाबानों में दौड़ना पड़ा, नंगे पांव, जूती भी नहीं पहनी। वही अमनून जो है उसने अपनी ही माओ का, अपने बाप की बीवियों को अल एलानिया छत पे तंबू लगा के उनके साथ बदकारी की। उसी का एक बेटा सुलेमान, जिसकी हम मिसालें देते हैं, वो बुत परस्ती के अंदर चला गया। उसके बच्चों ने क्या क्या नहीं। लेकिन आपने सेटल करना जो चीज की आप जिम्मेदार नहीं है। आपने कोशिश की है, आपने मेहनत की है, आपने जो है पौधा ठीक लगाया है, तो फिर जब वुक्सन हो जाते हैं, जब वो ग्रोन अप हो जाते हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी के खुद, अपने फैसलों के खुद जिम्मेदार है, आप नहीं है। हाँ, दुआ आप जारी रखेंगे, आप उनके लिए फिक्र करेंगे, रोएंगे, दुआ करेंगे, रोजे रखेंगे, ये आप करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जब वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल हो गए, तो फिर वो आपकी टेरिटरी से बाहर है। फिर आप उनके जवाब दे नहीं है, फिर वो खुद अपने जवाब दें। खुदा, मैं पिछले दिनों किसी को बता रहा था, खुदा किसी का ना दादा है ना नाना है। खुदा सबका क्या है? बाप। जो आपके बच्चे हैं वो डायरेक्ट अब उसके भी बच्चे हैं। जब वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल हो गए, तो वो अपने
चीज़ों के खुद जिम्मेदार हैं, आपकी बीवी, आपका खावंद, आपका रिश्तेदार, आपके दोस्त, व्हाट्सएप। सो मुझे और आपको इत्मीनान में ज़िंदगी बसर करनी है। हमने ये चीज़ें सेटल डाउन कर लेनी है, जो नहीं हो सकती हैं वो नहीं हो सकती हैं। तो दूसरी सूरत में आप क्या कर रहे हैं? आप खुदा पे कंप्लीटली ट्रस्ट कर रहे हैं। आप एक मासूम बच्चे की तरह आप खुदा, जब आप ये चीजें सेटल डाउन कर लेते हैं तो आप किस तरह हो जाते हैं? एक बच्चे की तरह। बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। छोटा बच्चा है, जो छोटे, स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे हैं 2, 3, 4, 5 साल तक, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं? वो अपने वालिदैन पे ट्रस्ट करते हैं। तो मसीह ने खड़े करके बच्चे को क्या कहा था? खुदा की बादशाही कैसी है? इन बच्चों की तरह, जो अपने वालिदैन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। वो कोई गड़बड़ शड़बड़ नहीं करते, उनसे होती ही नहीं हो। वो गड़बड़ जब करते हैं तो आपको गुस्सा भी नहीं आता। क्यों? यू नो कि वो इनोसेंट है, वो मासूम है, दे डोंट मीन इट। तो आप जब इस तरह से सेटल डाउन कर लेते हैं अपनी जिंदगी को, आप अपनी चीजों से बाहर निकल आते हैं कि मैंने मसलों के हल करने हैं, मैंने एक्सप्लेनेशंस जो है इस चीज की मुझे चाहिए, सवाल चाहिए, ये जवाब। जब आप ये कर लेते हैं सेटल डाउन के ये नहीं है तो नहीं है, तो अब आप बच्चे की तरह हैं जो खुदा के हुजूर में है। वो अपने बाप पे, मसीह पे ट्रस्ट कर रहा है। अब वो इस लायक है कि वो बादशाही के फर्जंद के तौर पे खुदा के साथ जिंदगी बसर कर सके। अगर हम ऐसा कर सकेंगे तो खुदा जो है वो हमें बरकत देगा, क्योंकि फिर हमें अपनी अब लिमिटेशंस पता लग गई हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के खत 12 बाब की 3 आयत में कहते हैं, जिसको जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे। अगर मेरी दुआ से कभी किसी का सिर दर्द ठीक नहीं हुआ तो मुझे ये नहीं करना चाहिए मैं जो हूं वो कहूं कि मेरी दुआ से मुर्दा जिंदा हो जाए। हमें दुआ में, कलाम में आगे बढ़ना है। हमें खुदा पे ट्रस्ट करना है। जो चीजें मेरी लिमिट में नहीं है, मेरी समझ में नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है, यू आर देयर, तो आए बाप मैं तेरे पे ट्रस्ट करता हूं। आपको अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। हमें अपनी स्टॉप लाइन का पता होना चाहिए, कहां पे स्टॉप लाइन है, हमने उसको क्रॉस नहीं करना, वहां से आगे खुदा ने जाना है। जब वो हमें आगे ले जाए, उससे हमारी हदूद बढ़ा दे, इट्स गुड, इट्स वंडरफुल। अगर नहीं तो आपको पीस में रहना है, आपको खुदा में रहना है, और वो चाहता है कि आप जो है वो उस पर ट्रस्ट करें, और वो आपकी ज़िंदगी में ऐसा ईमान देखना चाहता है पीस के लिए, उसमें रहने के लिए, कि आप उस ईमान के वसीले से क्या कर सकें? हर एक टेस्ट में से गो थ्रू कर सकें। आपकी ज़िंदगी में जो टेस्ट आते हैं उसमें से आप गो थ्रू कर सकें। ये खुदा का मकसद और ये खुदा का पर्पस है। आपकी जिंदगी में वो ऐसा ईमान देखना चाहता है कि आप उन दुआओं के लिए जिनका जवाब मिल गया है खुदा की तरफ देखें, और उन दुआओं का जिनका जवाब नहीं मिला उनके लिए भी आप खुदा की तरफ ही देखें। आप उन दुआओं का जवाब जिनका मिल गया है खुदा के लिए शुक्र करें, और उन दुआओं का जिनका जवाब नहीं मिला उनके लिए भी उसका शुक्र कर सकें। Then you will live in peace। दुआ करें। खुदा जिंदा बुजुर्ग जलाली आसमानी बाप, कलाम की इन बातों को मेरे घराने और मेरे नजीज बहन भाइयों के लिए बाइस से बरकत ठहरा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा उनकी मेज पे शरीक होंगे।